Namaste. Welcome to Physics Wedge. Now, today we are going to start first law of motion. Okay. So, laws of motion you must have heard about. Laws of motion के बारे में आपने सुना होगा कि क्या होते हैं, किसने दिए थे laws of motion? Laws of motion were given by Isaac Newton. Okay. न्यूटन जो थे उन्होंने laws of motion दिए थे. ठीक है. और याद रखिए कुछ बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन और लॉज ऑफ मोशन में. सो ये ध्यान रखिएगा कि इक्वेशंस ऑफ मोशन गैलीली ने दिए थे और वो इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन थे. ठीक है. लॉज ऑफ मोशन वर गिवन बाय आइजैक न्यूटन. ठीक है ना. तो देखिए 3 लॉज उन्होंने दिए थे और ये 3 लॉज जो हैं इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे. सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को अगर आप समझना चाहते हैं तो उसके पहले आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस. ठीक है. उसके बाद में क्या होता है कि फर्स्ट लॉ आपके लिए आसान हो जाता है. बैलेंस्ड फोर्सेस. अब मान लीजिए कि आपके पास में कोई ब्लॉक है. ठीक है. इफ यू हैव अ ब्लॉक, सपोज यू हैव अ ब्लॉक, ओके, एंड इफ यू आर पुशिंग दिस ब्लॉक, ओके, इफ यू आर पुशिंग दिस ब्लॉक, सो इफ यू आर पुशिंग दिस ब्लॉक बाय अ फोर्स से 5 न्यूटन, ओके, इस डायरेक्शन में आप 5 न्यूटन से प्रेस इसको फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और फिर क्या कर रहे हो आप इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन से लगा रहे हो और इस डायरेक्शन से फिर 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो. तो अब एक बात बताइए इस ब्लॉक का क्या होगा? विल इट मूव? आपने 5 न्यूटन इधर लगाया, 5 न्यूटन इधर लगाया, तो ब्लॉक क्या रहेगा? ये वहीं के वहीं रह जाएगा. अब इस पे नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं. देयर आर नंबर ऑफ फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग ऑन द ब्लॉक बट इट इज नॉट मूविंग. व्हाई? बिकॉज दीज फोर्सेस आर एक्चुअली बैलेंस्ड फोर्सेस. इन फोर्सेस को क्या कहा जाता है? बैलेंस्ड फोर्सेस कहा जाता है. दे आर द बैलेंस्ड फोर्सेस. हियर फोर्सेस आर बैलेंस्ड. Okay, forces are balanced and that's why balanced forces, if they are acting, see they will not produce any resultant. Resultant would be zero and that's why it will not move. Okay, if it is stationary it will remain stationary only. Okay, so this is the concept of balanced force. Now suppose that I was applying force and say 10 Newton force is acting in this direction on the block and 5 Newton is acting in this direction. Okay, so what will happen? 10 in this, 5 in this. 10 minus 5 will give you 5 Newton in this. So block will move in this direction. Now these forces are not balanced. So what is balanced and unbalanced forces? Balanced forces are those forces when they act. There are a number of forces they may act. Now if their resultant is 0, then such forces are said to be balanced forces. But if number of forces are applied and their resultant is not 0, then such forces are unbalanced forces. The way forces were acting in the second case, 10 Newton in this direction, 5 Newton in the opposite direction makes 5 Newton in this direction. So these are not balanced forces. But 5 Newton here and 5 Newton here, they actually give you resultant 0 Newton and that's why they are the balanced forces. So this is the concept of balanced and unbalanced forces. This is the concept of balanced and unbalanced forces. Okay. Now see Newton's first law of motion. Newton's first law of motion. See, Newton's first law of motion is not different than the concept of inertia. Basically, Newton took the idea from the concept of inertia only. According to the first law. Now, if I'll state the first law, you will find that it is nothing but the concept of inertia only. But there is something added by Newton as well. Okay. तो कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया क्या कहता है? पहले तो इनर्शिया से ही ये लिया था. ठीक है. इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट. इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट रिमेन्स एट रेस्ट. अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा.
if an object is at rest, it wants to remain at rest. Okay, but if it is in motion, if it is moving with uniform constant velocity, then it will move with the same constant velocity in the same direction. Okay, if it is at rest, it wants to remain at rest. If it is moving with some velocity, some constant velocity in certain direction, it will keep on moving with that constant velocity in that direction, in that straight line, until and unless an external, okay, important, okay, this is a keyword, an external, this is a keyword, external unbalanced force is not applied on it. Unbalanced force is not applied on it. External unbalanced force is not applied on it. Extremely important. What does it say? अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता ही रहेगा उसी डायरेक्शन में, प्रोवाइडेड अगर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स उस पर एक्ट नहीं कर रहा है। बैलेंस फोर्स कुछ नहीं कर सकता, अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रखेगा और मोशन में तो वो मोशन में ही रहेगा। अगर वो बैलेंस्ड फोर्स एक्ट कर रहा है तो कुछ भी परिवर्तन नहीं आएगा, पर अगर अनबैलेंस्ड फोर्स होगा तो क्या हो जाएगा, उसकी जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगी। रेस्ट जो है वह मोशन में आ सकता है, मोशन जो है वह रेस्ट में आ सकता है, ये हो सकता है। बट फॉर दैट दिस इज द कंडीशन दैट एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ओके, अब आप देखिए, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। देखिए, अनबैलेंस फोर्स को तो मैंने बता दिया आपको। अनबैलेंस फोर्स मैंने बताया कि अगर मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर ब्लॉक है और इस डायरेक्शन में मान लीजिए 10 न्यूटन है, इस डायरेक्शन में अगर 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है तो बेसिकली रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 10 - 5 यानी 5 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। और अगर 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स राइट, इसका मतलब है यह अनबैलेंस्ड फोर्स है। दिस इज द अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, आई बात समझ में आपको? अब देखो बेटा, ये एक्सटर्नल फोर्स क्या है, थोड़ा सा समझो। एक्सटर्नल फोर्स, तो मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल दूंगा जिससे कि आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये एक्सटर्नल फोर्स के बारे में जब हम बात कर रहे हैं इसका मतलब क्या है। एक्सटर्नल, अच्छा इमेजिन कीजिए हम लोग जा रहे हैं एक पिकनिक पर, क्लास पिकनिक पर जा रहे हैं, और क्लास पिकनिक पर मान लीजिए थोड़ी दूर जाने के बाद में जो बस है वो क्या हो गई, बंद हो गई। अब बस बंद हो गई और ड्राइवर भैया ने बोला कि धक्का लगाइए, बस को स्टार्ट करने के लिए धक्का लगाना पड़ेगा। अब मान लीजिए जैसे ही बोला गया कि आपको धक्का लगाना है, आपने क्या किया, हम सभी ने क्या किया कि जो सीट थी आगे उसको धक्का लगाने लग गए। अगर हम उसको धक्का लगाने लग जाएंगे तो आप बताइए क्या काम करेगा? क्या धक्का लगाने से बस आगे बढ़ने लग जाएगी? आप अगर सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं। और फिर आपको पता है क्या होगा, ड्राइवर भैया बोलेंगे अरे ऐसे ना ही ना लगाना है, बाहर जाइए और बाहर जाकर लगाइए धक्का। तो आप मुझे अब बताइए, डेफिनेटली बाहर जाकर ही लगाना पड़ेगा। अंदर बैठकर अगर आप सीट को धक्का लगाएंगे, सो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। सो व्हाट्स द डिफरेंस व्हेन यू आर पुशिंग द सीट, यू आर पुशिंग द फ्रंट सीट, you were pushing the front seat earlier, now also you are pushing it, okay, but that doesn't work. But when you go out and then push the bus, it works. रीजन समझिए, जब आप अंदर बैठे हैं और पुश कर रहे हैं तो एक्चुअली वो इंटरनल फोर्सेस हैं। आपने सीट पर फोर्स लगाया, वो इंटरनल फोर्स है, क्योंकि जब आप बस के अंदर हैं आप बस के पार्ट हैं, तो वो इंटरनल फोर्सेस हैं। लेकिन जब आप बस के बाहर जाते हैं और आप अर्थ पे खड़े होकर, आप इमेजिन कीजिए आप किसी चीज को जब पुश करते हैं, तो जब आप पुश करते हैं ना, उस समय होता क्या मालूम है, आप अर्थ को पुश करते होते हैं।
और अर्थ से वो फोर्स लेते होते हैं, जनरेट करते होंगे, जिससे कि आप पुश करेंगे। एक्चुअली वो बाहर से आया हुआ फोर्स है, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स विच इज एक्चुअली अप्लाइड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, पर अंदर जो है वो सब इंटरनल फोर्सेस होंगे। इंटरनल फोर्सेस कभी भी स्टेट चेंज नहीं कर पाएंगे। स्टेट चेंज करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होगी, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर वो मोशन में है तो वह यूनिफॉर्म वेलोसिटी से उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा अनटिल एंड अनलेस। अब देखो, इसके पहले तक का तो सब क्या था, इनर्शिया ही था, लेकिन अब जो ऐड किया है वो न्यूटन ने किया है, अनटिल एंड अनलेस, ये न्यूटन का एडिशन है, अनटिल एंड अनलेस एन अनबैलेंस्ड, एन external unbalanced force is not applied on the object. Until and unless an external unbalanced force is not applied on an object, when an external unbalanced force is applied on the object, then you will find that there is change in the state of motion or rest of the object. Okay, so this is what is Newton's first law of motion. Do remember, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है उसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि इट इज बेसिकली टेकन फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। तो फिर न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन ने जो है एक नई कॉन्सेप्ट ऐड की, पहले इसकी वो कॉन्सेप्ट नहीं थी, और वो है कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। सो दैट्स व्हाई द importance of Newton's first law of motion is that it defines force. What is the importance? It defines force. Newton's first law of motion defines force. This is the importance of Newton's first law of motion. ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि वो डिफाइन करता है फोर्स को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वह फोर्स को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, ऑल्सो बिकॉज इट इज mostly based on the inertia concept, first law of motion is also called law of inertia. इसे क्या कहा जाता है, law of inertia भी कहा जाता है। और रीजन क्या है उसका, रीजन यही है क्योंकि वह मोस्टली बेस्ड है कॉन्सेप्ट ऑफ inertia। so this is what is Newton's first law of motion for you. An object which is at rest would remain at rest, and an object which is moving with constant velocity in a certain direction would keep on doing that until and unless an external unbalanced force is not applied on it. I hope this concept of Newton's first law of motion is clear to you. Thank you.